اصل ترجمہ من یشری نفسہ کا تو یوں ہے کہ بعض وہ لوگ ہیں جو اپنی ذات کو اللہ کی خوشی کے بدلے بیچ لیتے ہیں۔ تو جب بندے نے انسان نے اپنی جان کو اللہ تعالیٰ کی خوشی کے بدلے میں بیچ دیا، یعنی اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیا، اب وہ اس جان میں اپنی مرضی سے کچھ کر سکتا نہیں ہے، بلکہ وہ جان اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے، اللہ کی قدرت میں ہے، اور اللہ تعالیٰ جیسے چاہیں گے اس میں ویسے ہی کام کرنا پڑے گا۔ لہذا ان آنکھوں سے اب گناہ نہیں ہوگا، ان ہاتھوں سے گناہ نہیں ہوگا، ان پیروں سے گناہ نہیں ہوگا۔ کل کے سبق میں مدینہ منورہ کا ایک بڑا منافق اخنس بن شریح کی 3 بری عادت اللہ تعالیٰ نے بیان کی الگ الگ آیتوں میں۔ ایک بات تو اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کی آیت نمبر 204 میں کہ وہ بڑی چکنی چپڑی باتیں کرتا ہے، اپنے کو سب سے صحیح، سب کا خیر خواہ، سب کی بھلائی چاہنے والا ثابت کرتا ہے، اور بار بار اللہ تعالیٰ کو اپنے دل کی حالت پر گواہ بناتا ہے، یعنی ہر بات میں قسمیں کھاتا رہتا ہے۔ اسی لیے حدیث پاک میں ہے ہر بات پر قسم کھانا یہ نفاق کی علامت ہے۔ اس کے بعد کی آیت میں یہ بتائی کہ منافق کی ایک خاص بات پہچان یہ ہے، اگر حکومت مل جاتی ہے تو پھر وہ ملک میں علاقے میں فساد برپا کرتا ہے، کسی کو چین سکون سے رہنے دیتا نہیں ہے۔ اور تیسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کی منافق کی ایک خاص بری عادت، جب اس سے کہا جاتا ہے کہ تم ایسا کاہے غلط کام کرتے ہو، اللہ سے ڈرتے رہا کرو، توبہ کرو، تو غرور اور تکبر اس کو گناہ پر آمادہ کر دیتا ہے، اور وہ بجائے توبہ کرنے کے، گناہ چھوڑنے کے، لوگوں کو تکلیف پہنچانے والے کام کو چھوڑنے کے بجائے اور طاقت لگا کے کرتا ہے۔ اس کے بعد اللہ نے کہا کہ بعض وہ لوگ ہیں کہ جو اپنی جان کو اللہ کی خوشی میں نذر کر دیتے ہیں، اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں کہ آپ کی مرضی کے خلاف ہمارے جسم کا کوئی حصہ کام کرے گا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں، قرآن میں موجود ہے، منافقین کا، کافروں کا، مشرکوں کا کبھی ان کی بری عادتوں کا کبھی پہلے ذکر کیا، اس کے بعد اپنے کامل ایمان والے بندوں کا، مخلصوں کا ذکر کیا، اور کبھی اس کے الٹے کہ اپنے نیک بندوں کی عادت کو، خوبی کو اللہ نے پہلے بیان کیا، اور پھر کافروں، منافقوں، مشرکوں کی بری عادت کو بیان کیا۔ کاہے؟ تاکہ قیامت تک آنے والے انسان ان دونوں باتوں کو سمجھ کر اپنے کو اچھا بنا لیں، بروں سے دور کر لیں، اور اگر بروں کے طریقے پر چلیں گے تو پھر آخرت میں وہ اپنے برے انجام کا انتظار کرتے ہیں۔
या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़्फ़ा वला तत्तबिउ खुतवातिश-शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। 208 नंबर की ये तिलावत है, अरे आयत है। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, ऐ ईमान वालों, इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ और शैतान के नक्श कदम की पैरवी न करो। इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, इसलिए कि वो तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है। मदीने पाक में कुछ यहूद मुसलमान हुए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आए और कहा, हमारी चाहत ये है कि तौरात के कुछ अहकामात पर भी हम अमल करें और आप पर नाजिल होने वाली किताब पर भी हम अमल करते रहें। तौरात के कौन से अहकाम पर अमल करेंगे? उन्होंने खुद ही लिस्ट बता दी, हवाले की। जो उनकी तौरात उनके पास मौजूद है आज भी, उसमें उनके यहाँ ये लिखा हुआ है, ऊंट का गोश्त हराम है बनी इसराइल पर, ऊंटनी का दूध हराम है बनी इसराइल पर, ऊंटनी की चर्बियां हराम है। इसी तरह से हम अगर किसी का माल ले लें, ना दें और उससे माफी भी ना मांगे तो हमारे लिए कोई गुनाह की बात नहीं है। तो हमको इन तमाम कामों की भी इजाजत दे दीजिए। हम मुसलमान हो रहे हैं, बाकी और जो आपके यहाँ है वो करते रहेंगे। देहाती जुबान में इसको यूं कह लीजिए कि गोरख धंधा करेंगे। और आज की जो बड़ी पढ़ी लिखी जुबान है उसमें क्या कहेंगे आप इसको मालूम है? हमको रिजर्वेशन दे दीजिए, इन कामों का हमें रिजर्वेशन मिलेगा, हम करके रहेंगे, बाकी चीजों पर हम आपके साथ रहेंगे। अल्लाह ताला ने कहा कि ऐ ईमान वालों, जो लोग भी ईमान लाए, तुम भी जुबान से ईमान लाए हो। हमारे यहाँ कायदा एक है, सारे ईमान वाले उसी वक्त होंगे जब इस्लाम पर मुकम्मल अमल होगा। आगे बढ़ने से पहले एक बात तवज्जो से सुनिएगा, इस्लाम महज तरीक़े इबादत नहीं है। अवामी हिंदी जुबान में हम उसको कहने की यूं कोशिश कर सकते हैं कि इस्लाम पूजा पाठ की कोई रस्म नहीं है, बल्कि इस्लाम एक दाबिते हयात है। आप इबादत कैसे करेंगे उसका पूरा कानून, आप निकाह कैसे करेंगे उसका पूरा कानून, आप तिजारत कैसे करेंगे उसका पूरा कानून है। इस तरह नमाज आपकी बगैर इन कवानीन की पाबंदी के सही नहीं होगी। इसी तरह आपका माल तिजारत से, बिजनेस से उस वक्त तक हलाल नहीं हो पाएगा जब तक इस कानून पर आप अमल नहीं करेंगे। ये कमी आज हमारे यहाँ मुकम्मल तौर पर, कि अगर नमाज का तरीका मेहनत करके, कोशिश करके, सीख कर वो हासिल कर लिया है जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है, तो नमाज तो ठीक हो रही है। लेकिन कारोबार की लाइन में, माल हासिल करने के लाइन में, माल खर्च करने के लाइन में, निकाह करने के तरीके में हम कभी कोई मसला मसाइल नहीं पूछते, वहां जैसे चल रहा है चल लेती है। अभी एक खबर मिली कल परसों की, हज करने गए हैं लोग, एक साहब ने बाईं तरफ से तवाफ शुरू कर दिया
किसी ने समझाया कि भाई दाईं तरफ से तवाफ होता है, पहले बाईं से नहीं होता। उन्होंने कहा तवाफ का माना हमने पढ़ा है डिक्शनरी में चक्कर लगाना, वो चक्कर दाएं से हो चाहे, अरे बोलिए ना, बाएं से हो। तो जब समझ आपकी ये है तो 5.5 लाख रुपया मैं कहता हूं बार बार, आपका समंदर इसी बहरे अरब में जाएगा, ये कोई नेकी लाके देगा? अरे बोलो क्यों? उस घर का चक्कर मकसूद नहीं है। सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हज करने आए हैं, हजारों का मजमा है, हजर अस्वद पर पहुंचे, खड़े हुए और जाके उसको चूमने से पहले जोर से कहा, ओ पत्थर, तेरी कोई खास हैसियत नहीं है, हम तो सिर्फ तुझको बोसा इसलिए ले रहे हैं, अपना होंठ लगा रहे हैं कि इमामुल अंबिया को हमने इन आंखों से देखा कि तवाफ के दरमियान हजरत रिसालत मआब हर चक्कर में तेरा बोसा कट लेते थे, इसलिए हम बोसा ले रहे हैं। न तू किसी को नफा दे सकता है, न नुकसान दे सकता है। मकाम इब्राहिम पर नमाज पढ़ना उसके सामने बहुत बड़ी नेकी, जी हाँ है। कब? जब इमामुल अंबिया के तरीके पर वो 2 रकात होगी। और अगर आपने ये कहा कि नहीं नहीं, मेरा दिल चाहता है कि कुप्पा बड़ा खूबसूरत है, फूल माला नहीं चढ़ा सकता, लाओ उसके सामने 2 रकात इस नियत से पढ़ लूं कि बड़ा अच्छा लगता है, इसका कोई मतलब नहीं है। ये है उदखुलू फिस्सिल्मी काफ़ा। बात लंबी हो जाएगी, बस इतना समझ लीजिए कि इस आयत का सबक आज लेके ज़हन में जाइए और बैठ के तन्हाई में गौर कीजिए, तबसरे में नहीं। आज मौलाना ने जो बात कही सही है, फलाने का तो भाई मामला गड़बड़ है, फलाने का गड़बड़ है कि नहीं, आपका कितना सही है वो आप देखिएगा। फलाने का तो गड़बड़ कह के आपने और गड़बड़ कर लिया। आप ये देखिए कि आपकी नमाज अगर माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह दुरुस्त हो रही है, तो आपके कारोबार, आपके घर में पर्दे का एहतमाम, हलाल और हराम की पहचान, कितनी चीज हमने खुद हलाल की और कितनी चीज हराम कर लिया है कि नहीं है? आप पूछिए, देखिए मुस्लिम मुआशरा कहाँ पड़ा हुआ है। आगे फरमाया कि शैतान के नक्शे कदम की पैरवी न करो, यानी शैतान क्या चाहता है, सुनो, खाली 2 लफ्जों में बात खत्म कर दूं इंशाअल्लाह। शैतान ये चाहता है कि मैं जैसे जन्नत में इबादत करता था, अल्लाह के अहकामात पर पाबंदी से अमल करता था, लेकिन अल्लाह ताला ने कहा आदम को सजदा करो, मैंने कहा ये नहीं होगा। अल्लाह ने क्या कहा, तुमको रिजर्वेशन मिल जाएगा। आप पढ़िए, नहीं पढ़ना जानते तो पूछिए पढ़ने वालों से, जानने वालों से। अल्लाह पाक ने कहा फखरुज, निकल जाए यहाँ से, मदमूमन मदहूरा, मरदूद और जलील बनकर निकल यहाँ से। हालांकि आज की तारीख तक सजदा करने से पहले उसने कोई नाफरमानी की थी नहीं। तो शैतान चाहता है कि एक हुक्म तोड़ने की वजह से मैं अल्लाह का मरदूद बना। तो आदम की औलाद हाजी भी रहे, आलिम भी रहे, हाफिज भी रहे, मुत्तकी भी रहे, साल में 3 उम्र करने वाली भी रहे, लेकिन कोई ना कोई अल्लाह का हुक्म तोड़कर अल्लाह की मरदूद रहे। ये है शैतान की प्लानिंग। अमेरिका की प्लानिंग हमें मालूम है, आरएसएस की प्लानिंग मालूम है, लेकिन शैतान की प्लानिंग मालूम नहीं। शैतान कभी नहीं चाहता हमसे आपसे कि मंदिरों में ये सजदा करें, कभी नहीं। ये याद रखो, उसको पता है कि ये जाने वाले नहीं है, इनके खून में मंदिरों से, पुतों से नफरत है, लेकिन वो आइटिंग क्या लगाता है, फलानी क्या करता है, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है। हम तुमको ऐसी लंगी मारेंगे कि तुम हमारी तरह अल्लाह के मरदूद बन के रहोगे। सब कुछ ठीक है, मौलाना निकाह पढ़ाया, कहा इसमें क्या बात है। अगर मेरी बेटी घर में से निकलकर
गाड़ी तक बे पर्दा चली जाएगी तो कौन सी गुनाह का काम हुआ? सब वहां औरतें ही तो है ना। शैतान ने पट्टी पढ़ा दी कि नहीं पढ़ा दी? अरे मिसाल नहीं समझ में आ रही, आपको करा दिया कि नहीं? हालांकि आज रात में मैं तहज्जुद में उठकर अपनी बेटी के लिए दुआ कर रहा था, अल्लाह ताला ने उसके आसार जाहिर किए। बड़ी खुशी से मैंने अहबाब को दावत देके कहा, देखिए रिश्ता कैसा अच्छा मिला। लमिया ने कहा कि तुमने संभाला नहीं अपने को, इस नालायक ने तुमको लाकर यहाँ मेरी नजर में मरदूद बना दिया। यही है वला तत्तबिउल खुतवाति शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। ये जो चालबाजियां करता है वो इसलिए नहीं कि किसी खैर खाही में कर रहा है, बल्कि ये खुला हुआ दुश्मन है। खुला हुआ दुश्मन भी आज के वक्त में आप याद रखिएगा, कभी को खुलकर आपको बुरा भला नहीं कहेगा। आज भी ऐसा है, अगर कोई उसमें का आपको बुरा भला कहेगा तो दूसरा कहेगा कि देखो पिछली हुकूमतों में मुसलमानों के लिए कोई काम नहीं वो मैंने किया। कहेगा कि नहीं कहेगा? समझ रहे हैं कुछ कि नहीं समझ रहे हैं? ये खुले हुए दुश्मन की पहचान है। खुला हुआ दुश्मन क्या है कि सुबह को आके फायरिंग करने लगेगा? ये तो कभी नहीं करेगा, वो ऐसा करेगा? ये हमेशा ये कुरान पढ़ने सुनाने का मतलब यही होता है। अल्लाह ताला ऐसे ऐसे राज बताते हैं इस नालायक की शरारत के, अगर हम आप में तवज्जो नहीं थी तो हमारे घर में ही कुफ्र शिर्क सड़ रहा है। उसके बाद अल्लाह ताला थोड़ा सा नाराज होकर कहते हैं फ़इन ज़ललतुम मिन बादि मा जाअकुमुल बय्यिनात, अगर तुम खुली हुई दलीलों के आने के बाद फिसल गए, फ़अलमू, जान लो, अन्नल्लाह अज़ीज़ुन हकीमुन, बेशक अल्लाह बहुत जबरदस्त इंतहाई हिकमत वाले हैं। ये तर्जमा हुआ है आयत नंबर 209 का। दलाइल आ चुके, अहकामात सब बयान हो चुके हैं। अब उसके बाद कहीं अल्लाह के हुक्म पर अमल है और कहीं शैतान की चाल पर अमल है, यही फिसलना है। जैसा कि अर्ज कर चुका हूँ, शैतान ने 10-20 गुनाह नहीं किए अल्लाह ताला के, बस कहा आदम को सजदा करो, कहा नहीं ये नहीं हो सकता। अल्लाह ताला ने कहा मरदूद हो जाओ। इसलिए ये जो हमारे यहाँ बात होती रहती है, हम लोग नमाज भी पढ़ते हैं, ज़कात भी देते हैं, हज भी करते हैं, आपस में एक दूसरे पर सिला रहमी करते हैं, और कुछ परेशानी होती है तो मुसलमान के लिए पहले से दौड़ पड़ता है। उसके बावजूद कहते हैं हमारे जैसे कमजोर लोग अल्लाह की मदद नहीं आ रही है। तो आपने ये फहरिस्त तो गिना दी अपनी नेकी का, लेकिन ये नहीं आपने देखा कि कितनी बार आज मेरे घर में या मैंने खुद भी शैतान की बात पर अमल किया है। और अल्लाह ताला जिस तरह से गनी है, बेनियाज है सारी कायनात से, इसी तरह से उनकी सिफात भी बेनियाज है। नुसरत, मदद, ये उनकी सिफत है। आगे देखिए, हल यंजुरूना इल्ला अन यअतियहुमुल्लाहु फी ज़ुललिन मिनल गमामि वल मलाइकति व क़ुदियल अम्रु व इलल्लाहि तुरजऊन। ये तो इस बात के मुंतज़िर हैं कि अल्लाह और फरिश्ते अब्र के साए में आ जाएं और किस्सा तय हो जाए और सारे उमूर अल्लाह ही की तरफ रुजू करने वाले हैं। ये आयत नंबर 210 का तर्जुमा हुआ। मतलब समझने से पहले एक बात याद रखिएगा, तमाम ईमान वाले नबी से लेकर आज तक और क़यामत तक ये ईमान वालों का अक़ीदा है कि अल्लाह ताला अपनी ज़ात में कैसे हैं वो जानते हैं, हम नहीं कुछ कह सकते। तो उनका जिस्म यूं है, उनका हाथ यूं है, उनका पैर यूं है। यहूद आज भी इसी बात पर डटे हैं
ہر دھرمی پر پڑے ہوئے ہیں، آج کی تورات میں بھی یہی بات لکھی ہے، اللہ کا جسم ایسے ہی ہے نعوذ باللہ جیسے ہمارا۔ اب جب اللہ تعالیٰ جسم والے ہیں یہودیوں کے مطابق، تو ان کا یہ کہنا ہے ٹھیک ہے ہم خدا کی نافرمانی کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ یا تو فرشتوں کو بھیج دیں ہمیں سزا دینے کے لیے یا خود ہی آ جائیں۔ اسی لیے ان کی کتابوں میں آج بھی ایک لفظ بہت صاف اردو میں جو ترجمہ ان کا ہے اس میں ہے، خدا اپنے بندوں پر سزا دینے کے لیے، خدا اپنے بندوں پر نعمت کرنے کے لیے ابر کے سائے میں آ رہا ہے۔ یہ آج بھی ان کے اللہ تعالیٰ نے اسی انداز میں بات کی ان کے دماغ کے مطابق، ان کی سوچ کے مطابق۔ یہاں پر اللہ نے یہ نہیں کہا یہ غلط سوچ رہے ہیں صحیح سوچ رہے ہیں، اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جس انداز سے تمہاری سوچ ہے وہ یہ ہے کہ احکامات پر عمل کرنا نہیں ہے، سزا دینا ہے تو دے دیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ انتظار کرتے رہو، دنیا میں ہم اس طرح کی سزائیں نہیں دیتے، بلکہ ہم تو اپنے دشمنوں کو بڑی مہلت دیتے ہیں، بہت ڈھیل دیتے ہیں۔ یہ عبرت ہے ایمان اور اسلام والوں کے لیے۔ ان کے پاس جتنی دنیا میں اللہ نعمتیں دیتے ہیں یہ مقبولیت کی بالکل دلیل نہیں ہے، اور اگر ایمان والا اس میں شک و شبہ کرے گا اس کے ایمان کا دعویٰ بیکار ہے۔ سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیت بینہ ومن یبدل نعمت اللہ من بعد ما جاءتہ فإن اللہ شدید العقاب۔ یہ آیت نمبر 211 تلاوت ہوئی ہے۔ ترجمہ دیکھیے، آپ بنی اسرائیل سے پوچھئے ہم نے ان کو کس قدر کھلی ہوئی دلیلیں عطا کی تھی، ایک بات۔ دوسری بات اب دیکھیے ترجمہ میں، وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ، اور جو کوئی بھی اللہ کی نعمت کے پہنچنے کے بعد اسے بدل ڈالے گا فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، تو بے شک اللہ سخت سزا دینے والے ہیں۔ بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ نے بہت دینی اور دنیاوی دونوں نعمتیں دی، جیسا کہ ہم پہلے پارے میں کہہ چکے ہیں۔ دوسری بات سمجھنے کی کوشش کیجیے گا، اللہ کی نعمت ایمان اسلام والوں کے لیے سب سے بڑی یہ ہے ایمان کے بعد کہ ایمان اور اسلام والے اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب پر عمل کریں۔ علماء کا لفظ ہم نے استعمال نہیں کیا تھا سمجھنے کے لیے، اب سنیے گا۔ حضرات مفسرین یوں کہتے ہیں ایمان اسلام والوں کے لیے ایمان کے بعد اللہ کی سب سے بڑی نعمت کتاب اللہ کا حامل ہونا ہے۔ اب تو سمجھ جائیں گے، یعنی کتاب اللہ پر عمل کرنا ہے۔ یہود و عیسائی ہمیشہ انہوں نے یہ کیا، عمل تو دور کی بات کتاب اللہ کو بدلنے پر لگے رہے۔ اب جب کتاب اللہ پر عمل کے بجائے اس کو بدلنے کی بات چلے گی تو اللہ تعالیٰ کے یہ مردود بندے بنیں گے کہ مقبول بندے بنیں گے؟ جب مردود ہوں گے تو سزا مل کے رہے گی۔ تو کہیں اسی طرح کی حرکت ہم بھی تو نہیں کر رہے ہیں بیٹھے بیٹھے؟ اللہ کے قانون کو، اللہ کے احکامات کو اپنی خواہش کے مطابق توڑ پھوڑ کر رہے ہیں یا کروانے کو یا کرنے کو پسند کرتے ہیں؟ اگر اس طرح کی بات ہمارے یہاں رہے گی تو پھر ہمارا تو جو حال ہے اس سے آگے بھی کچھ گڑبڑ ہوگا۔ اللہ ہم کو اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے لیے، ہماری نسلوں کے لیے اس ملک کو بہتر سے بہتر بنا دیں۔
سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.